Everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 10. The chapter name is Reaching the Age of Adolescence. In previous class, almost we completed all the explanation, and today class we discuss all the question answer regarding this chapter. Now we start question number 1. What is the term uses for secretion of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? कि क्या चीज सिक्रीशन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस को टेक प्लेस करती है. What is this is a hormone. Next, define adolescence. The period of life The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. जो period of life है, धीरे धीरे जो body के अंदर changes हो रहे हैं, reproductive maturity आ रही है, इस ये जो पूरा age group age time होता है उसको हम adolescence बोलते हैं. The period of adolescence is normally 11 years to 19 years. Okay. Next one is, what is menstruation? Explain. In female, the ova and egg begin to mature with the onset of puberty. Puberty start होती है तब उसमें ओवरी में एक ओवा और एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है. ये एज 10 to 12 ईयर के आसपास हो सकती है. One egg get matured and is released by one of the ovary once in 28 to 30 days. एक ओवरी के अंदर से जो एक एग रिलीज होता है, मैच्योर होता है, वो 28 to 30 डेज के बिटवीन में होता है. During this period, the wall of uterus become thick. इस टाइम पीरियड में जो यूटेरस की जो वॉल है वो थिक होना स्टार्ट होती है, so as to receive the fertilized egg. In case it is fertilized, it began to develop. This result, the wall of uterus become thick, so to receive fertilized egg. इस टाइम पे जब ये egg mature हो रहा होता है तो यूटेरस के अंदर जो वॉल है वो थोड़ी थिक होना स्टार्ट हो जाती है. किसके लिए? ताकि fertilized egg आपको वो रिसीव कर सके और वो उसमें embedded हो सके. ओके. इन केस इट इज fertilized, अगर ऐसा होता है कि वो egg fertilized हो जाता है, it begin to develop. This result in pregnancy. तो धीरे धीरे वो egg develop होना स्टार्ट हो जाता है. It converts into zygote, embryo and fetus. ओके. और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी अगर हो जाएगी. इफ द फर्टिलाइजेशन फेल, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है टू टेक प्लेस, द ओवम और द released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते, तो यही ओवम जो है वो रिलीज कर दिया जाता है. उसके साथ में अब यूटेरस के ऊपर जो थिक लाइनिंग बनी है उनका भी कोई यूज नहीं है. तो ब्लड वेसल्स, थिक लाइनिंग एंड वो जो एग है वो सब शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है. दिस कॉजेस ब्लीडिंग इन द वुमेन. इसी के कारण जो वुमेन से उनमें ब्लीडिंग होती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुएशन. It occur once in a 28 to 30 days. ये 28 to 30 days के बीच में complete होता है. Next question number 4 is changes in the body that take place at puberty. हम एक लिस्ट बनाए कि puberty के अंदर boys and girls में क्या-क्या changes होते हैं. The changes take place differently in the body of boys and girls. बिल्कुल differently body के अंदर changes होते हैं. कुछ वो changes boy में होंगे, कुछ changes girl में होंगे. At puberty में these change may be listed as because इन changes को हम list में बता सकते हैं. There is sudden increase in the height of boys and girls. Sudden इस time पे height increase होती है. However, both reach their maximum height at the age of 17 to 18. तो 17 और 18 years में इनकी जो height है वो maximum हो जाती है. Second, the voice of boys become harsh and that girls become shrill. जो girls की voice है वो shrill मतलब तीखी होने start हो जाती है. boys की जो voice है वो थोड़ी harsh और rough होने start हो जाती है. In boys, shoulder become broader and muscles grow more prominently in boys. जो boys है उनके shoulder थोड़े broader होने start हो जाते हैं, muscles grow होना start हो जाते हैं. In girls, the region of below waist become wider. Waist के नीचे का जो part है वो थोड़ा wider होना start हो जाता है. Hair start growing in different part of boys and girls. Hair grow होना start हो जाते हैं different parts में. In most of the teenagers, due to increased secretion of sweat and sebaceous gland, जो teenagers हैं उनके अंदर sebaceous और sweat gland भी increase, जो secretion है वो भी increase हो जाता है. Get acne and pimples on their face in this stage. Okay. Next, onset of puberty brings changes in secondary sexual characters in both male and female. और during puberty के अंदर उनकी body के अंदर जो secondary sexual characters होते हैं, which characteristic we define in boys and girls differently. So those characters started in the body.
बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो बॉय और गर्ल है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। इन गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स स्टार्ट टू रिलीज इनिशिएटिंग एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन है, जैसे हमने बात करी थी कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंटिन्यू रखेंगे, those hormones are releases. Now move to question number 5. Prepare a table having two columns depicting name of endocrine gland and hormones secreted by them. Answer. First one is pituitary gland. Which hormone is secreted by pituitary gland? Both hormones. Okay. Second endocrine gland is ovary. Ovary secreted estrogen hormone. Okay. And the third one is testis. Testis producer and secretor testosterone hormone. Thyroid, thyroxine hormone. Pancreas release the hormone of insulin, and adrenaline gland produces or secreted adrenaline hormone. ठीक है, तो ये जो 6 है ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या थी? ऐसी ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशन को इनसाइड द बॉडी सिक्रेट करती है। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड का एक अदर नेम है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड मतलब जो भी हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं वो डक्टलेस होता है, मतलब इनमें कुछ ट्यूबुलर फॉर्म नहीं होता, ये डायरेक्ट इन हार्मोन्स को ब्लड के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, now question number 6. What are 6 hormones? What are they named? So their functions. The hormone which help to control the formation of secondary sexual characters are called sex hormones. ऐसे हार्मोन्स जो सेकेंडरी sexual characters को कंट्रोल करके रखते हैं या उनको हैपन होने में हेल्प करते हैं, तो वो हार्मोन्स कौन से होंगे? सेक्स हार्मोन। They are named so because they control the sexual activities and are secreted by males and females separately. और दोनों के अंदर मेल और फीमेल में सेक्सुअल एक्टिविटी जो है या ये हार्मोन जो है सीक्रेटेड सेपरेटली होते हैं। फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन आर गिवन बिलो सेपरेटली। मेल सेक्स हार्मोन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन. It is secreted by testes and causes changes in secondary sexual characters of boys, like growth of facial hair, like mustache, beard, etc. It also stimulates spermatogenesis. Spermatogenesis क्या process होता है बेटा? To produce sperm. Sperm को produce करना या उनको make करने का काम जो होता है वो भी इस हार्मोन के थ्रू होता है। नेक्स्ट, फीमेल सेक्स हार्मोन, इट इज आल्सो कॉल्ड एस्ट्रोजन. इट इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज. ये इसमें एस्ट्रोजन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, इसे secreted by ovaries. किसके थ्रू secrete होता है? ovaries के थ्रू. And control the secondary sexual characters in females, appearance of mammary glands, etc. It also maintain प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रखता है एस्ट्रोजन। फीमेल में 2 हार्मोन्स वर्क करते हैं। आपकी बुक में इस चैप्टर में आपको एस्ट्रोजन ही शो किया हुआ है। आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो उसके साथ में आपको एस्ट्रोजन के साथ में प्रोजेस्टेरोन भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Choose the correct option. Adolescents should be careful about what they eat because जो adolescent स्टेज है इसमें जो भी खाना खाते हैं उसके लिए केयरफुल क्यों रहना चाहिए? प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन, अगर वो प्रॉपर डाइट लेंगे तो उनका ब्रेन डेवलप होगा। प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। एडोलसेंट फील हंग्री फ्रॉम ऑल द टाइम, क्योंकि उनको हर टाइम भूख लगती रहती है, इसीलिए उनको खाना खाना चाहिए। टेस्ट बड आर वेल डेवलप इन टीनेजर्स, टीनेजर्स में टेस्ट बड ज्यादा डेवलप हो जाती है। तो आंसर इज प्रॉपर डाइट इज नीडेड रैपिड ग्रोथ, क्योंकि इतना हाइट इतनी तेजी से बढ़ रही है, बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं, नए नई बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं और इतनी ग्रोथ हो रही है, तो इसीलिए एक प्रॉपर डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। रिप्रोडक्शन एज इन वुमन स्टार्ट व्हेन देयर इज, रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट हो जाती है वुमेन्स में? जब भी वुमन के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तो रिप्रोडक्टिव एज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। The rapid meal of adolescent consists of right meal. The right meal of adolescent consists of, जो right meal है वो क्या हो गया? चिप्स, नूडल्स, नो, राइस नूडल्स, वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स, लेमन। देखते हैं आप इसमें सब में एक एक फास्ट फूड का एग्जांपल दिया है विच आर नॉट गुड फॉर अस, या पैकेज्ड फूड का एग्जांपल दिया हुआ विच आर नॉट गुड फॉर अस। तो चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स आर द राइट मील ऑफ एडोलसेंट। Next, question number 8. Write note on Adam's apple, secondary sexual character and sex determination in unborn baby. First, Adam's apple. During puberty, a change in the voice of boys and girls take place
ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। तो ये जो एडम्स एबल होता है, ये प्योरिटी वाले टाइम पे जो वॉइस के अंदर चेंज आता है बॉयज और गर्ल्स के अंदर, उसके साइज के इंक्रीज होने के कारण वॉइस बॉक्स के, तब होता है इन बॉयज द वॉइस बॉक्स कैन टू प्रोड्यूस आउट द अपर पार्ट ऑफ द नेक। जो वॉइस के अंदर ये जो वॉइस बॉक्स होता है अपर पार्ट के नेक में बाहर आना स्टार्ट हो जाता है बिलो द चिन, चिन के नीचे की तरफ, एंड इज ऑफन रेफर टू एज एडम एप्पल, और उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, एडम एप्पल। Now, second point is secondary sexual characters. Those characters which are visible more apparently and help in distinguishing a male or a female are called as sexually secondary sexual characters. ऐसे characters जो visible हो डिस्टिंगाइज करने में, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल, ये आर कॉल्ड अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल इन गर्ल ब्रेस्ट डेवलप होते हैं एंड इन बॉयज फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे मुस्टैच एंड बियर्ड। Now, last point in this chapter is sex determination in unborn baby. The sex of a child, whether it is male or a female, determined at the time of fertilization. जो सेक्स है चाइल्ड का, जो अनबॉर्न बेबी का, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन होगा। व्हेन अ मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, जो मेल गैमेट है फ्यूज होता है किससे, फीमेल गैमेट से। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव अ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर। 2 क्रोमोसोम उनके अंदर से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों में सेम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ए फीमेल हैज 2 X chromosome, with a male has a 1 X and 1 Y chromosome. The gamete have only one set of chromosome. The unfertilized egg always have a 1 X chromosome. So गैमेट है, मे बी एग हो, मे बी स्पर्म हो, उनमें सिर्फ एक ही चीज होती है। फिर हम कह रहे हैं ना फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई, लेकिन जो गैमेट्स होते हैं उसमें या तो एक्स होगा या वाई होगा, मतलब एक ही चीज होगी, ठीक है। तो द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव वन एक्स क्रोमोसोम, but sperm are two kind of, one having an X chromosome and other having a Y chromosome. When a sperm containing X chromosome fertilized with egg, ऐसा sperm जिसके अंदर X chromosome contain है, वो fertilize होता है किससे, X से। The zygote would be 2 X chromosome. तो zygote में कितने chromosome आ गए, 2 X chromosome आ गए, and develop into a female child, जिससे क्या होगा, female child develop होगी। If the sperm contribute a Y chromosome to the egg or ova at fertilization, अगर sperm का Y chromosome जो है फर्टिलाइज होगा एग या ओवा से, तो जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। जो जाइगोट है वो किसमें कन्वर्ट होना, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल चाइल्ड के अंदर। इट इज thus also clear that the sex hormones, sex chromosomes of the father determine in the sex of unborn baby। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि मे बी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें बॉय या गर्ल है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फादर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। That's all about this chapter. I think you all are understood this chapter. Okay, so you do neat and clean work in your copy and make PDF and send it to me.